Let's pray. Lord God, thank you for right now. Thank you for eternity with you. Thank you for the life that you have placed in us that will last forever. Your life, and we will live because you live. Thank you for Romans. Thank you for these students. Thank you for my brother Kenneth so faithfully translating for us. Thank you for giving us your word, your spirit, one another. In Jesus' name, amen. Thank you very much. All right. And thank you for Dr. Autry that he is helping us. He's giving us his wisdom and knowledge and studies. So many years now? 2 years? 2 years of study. With you. Yeah, it's almost 2 years with you. That 2 years almost that we've been doing this, yes. Thank you. Yes, thank you. All right, I want to go back to our outline of the first 8 chapters of Romans just to remember where we are. और मैं जो आपके साथ पहले जो 8 चैप्टर हैं रोमन्स के, इनमें से काफी हमने पढ़ लिए हैं, उनको दोबारा आपको एक दफा जो है बताना चाहता हूँ. Of course, we've already finished the first 4 chapters where Paul makes the argument there is only one way to be right with God, and that is to receive by faith what God says and what God does. और हमें पता है कि पौलुस ने हमें ये बताया कि जो कुछ भी हमें खुदा से रास्तबाजी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ईमान के वसीला से मिलती है. Now we're in this section, chapters 5 through 8, where Paul is talking about what kind of life is it that we have if we have been justified. और उसके बाद हम देखते हैं कि जब 5वें से 8 बाब के अंदर पौलुस ये बताता है कि किस तरह की जो जिंदगी होती है जब हम मसीह में रास्तबाज हो जाते हैं तो फिर हम किस तरह की जिंदगी जो है वो गुजारते हैं. In chapter 5, Paul described the life of peace and the new life that we get from Christ compared with Adam. और हम सबसे 5वें बाब के अंदर पौलुस जो है वो बताता है कि हमारी खुदा के साथ सुलह हो जाती है और हम उसके साथ रहते हैं. उसके बाद वो आदम की मिसाल देता है. And in chapter 6, he especially emphasized death to sin. और चैप्टर जो 6 है उसके अंदर खास तौर पर हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम जो है वो गुनाह जो है उसको उसमें मर जाते हैं, यानी कि गुनाह जो है वो खत्म होता है. And of course, you can see the contrast between life with God and death to sin. और हम जो है देखते हैं एक ताल्लुक कि किस तरीके से जो खुदा में जिंदगी है और उसके बरक्स जो गुनाह है उसके अंदर मौत है. So that's chapter 6 where he really emphasizes that. But chapter 7 is going to cause us to have a question mark about this. और ये हमने देखा 6ठे चैप्टर में कि खुदा में हमारे पास जिंदगी है और 7वें चैप्टर में हम कहते हैं कि जो गुनाह की मजदूरी मौत है. लेकिन 6ठे चैप्टर में हम ये कहते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन 7वें चैप्टर के अंदर इसी बात के ऊपर सवाल उठाया जाता है. And chapter 7 is what we're going to look at today. और आज जो है हम 7वां जो चैप्टर है वो देखेंगे. It's helpful to know as we go through chapter 7 that we're getting ready to look at chapter 8. और ये काफी मदद देता है हमें इस बात को समझने के लिए कि जिस 8 चैप्टर को समझने के लिए 7वां जो चैप्टर है वो हमें काफी मदद देता है. Chapter 8 is where we're going to read about the help of the Holy Spirit. और 8वें चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि रूह कुदस के वसीला से हमें किस तरीके से मदद मिलती है. And chapter 7 leads up to that by showing us how much we need someone to help us. और जो 8वां चैप्टर है वो हमें यहाँ तक लेके जाता है
कि जिसमें हमें ये बावर हो जाए या हमें इस बात का पता चल जाए कि हमें कितना जो है वो पाकरू की या किसी मददगार की जरूरत है। When we talk about the help of the Holy Spirit, we're also talking about how we need the Holy Spirit to give us life. और जब हम रूल कुदस के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रूल कुदस जो है वो हमें जिंदगी देता है। And this is the life of God Himself. और ये जो जिंदगी है ये खुदा में है। So we're going to be talking about not just life with God, we're going to be talking about life from God. हमने सिर्फ यही नहीं देखना कि जो जिंदगी है खुदा के साथ, बल्कि ये कि खुदा से जो जिंदगी मिलती है वो। But I think Paul knows, he's been a Christian now a long time, he knows that we need to be convinced on this point. और पौलुस जो है जो काफी देर से मसीह था वो अब इस वक्त तक इस बात को समझ चुका हुआ था। We have a tendency as human beings to think that, all right, God helped me out of the trouble I was in. Now I'm good, I can do it now. और हम जो है इंसान होते हुए इसको इस तरीके से देखते हैं कि हाँ खुदा जो है उसने मुझे एक मुसीबत से निकाल दिया है और अब जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे हम ये बल्कि कहते हैं कि अब मुझे शायद इसकी जरूरत ही नहीं है। Perhaps you've had that experience. और हम सबको इस बात का जो है वो तजर्बा होता है। You can see that you have developed some maturity, some stability in your Christian life. और आपने ये जो है मसीह जिंदगी में सीखा होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं जब आप मसीही होते हैं। And you might think, all right, I think I know how to do this now. और आप ये कहते हैं कि हाँ अब तो मुझे पता चल गया है कि इसको अब मैं किस तरीके से करूं। And then something happens that just nearly knocks you over. और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आपका सारा कुछ जो है वो उल्टा कर देता है। And you find yourself crying out to God for help again. और आप दोबारा जो है अपने आप को उसी जगह पर महसूस करते हैं जहां पर आप पहले थे। और वो क्या था कि आप देखते हैं कि हमें अभी फिर दोबारा जो है वो मुझे खुदा की जरूरत है और आप खुदा के सामने जो है वो पुकारना उसको शुरू कर देते हैं। These are experiences that teach us we really need God's help every day. और ये जो तजर्बात हमारी जिंदगी में हमें होते हैं ये दरअसल हमें ये बताते हैं कि हमें हर लम्हा जो है खुदा की जरूरत है। This goes back to something we saw at the end of chapter 4. और ये जो है ये वापस हम देखते हैं जो कि हमने चौथे चैप्टर के अंदर देखा। There we were talking about Jesus' resurrection. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठते हैं। And how Jesus' resurrection is important because that's how we know we're saved from death. और जो यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठना जो है वो इस बात की जो है वो दलील है कि हम जो हैं वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हुए हैं। Now, that's true in the ultimate sense. We need His resurrection life to give us new bodies to live forever. और इसकी जो मुर्दों में से जी उठना जो है यीशु मसीह का जो मुर्दों में से जी उठना वो हमें इस बात के ऊपर भी जो है बताता है कि हमें भी खुदा जलाली जिस्म देगा। But we also need His life in us right now, today. लेकिन हमें अभी भी यीशु की जो जिंदगी है अपनी जिंदगी के लिए चाहिए। Because death is all around us, and as we'll see, death is even trying to get hold of us again. और हम देखते हैं कि हमेशा हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौत मंडलाती है और हम ये भी देखते हैं कि जो मौत जो है वो हमारे ऊपर कब्जा करना चाहती है। Now, as we go into chapter 7, we're going to see a lot of repetitive statements from Paul that show us there is a problem with human choices.
और यहाँ पर हम देखेंगे कि पौलुस जो है काफी बातों की दोबारा निशानदेही करता है कि एक बहुत बड़ा मसला है कि जो लोग हैं वो फैसले क्या करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। Perhaps you'll remember from chapter 5, we talked about what are the factors that make you a unique individual. और इनमें से एक बात ये भी है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं, क्या वो बातें हैं जो आपको एक मुख्तलिफ शख्स बना देती हैं। And we named 3 things that affect what kind of person you are, what kind of person I am. और ये 3 बातें हैं जो हमें ये बताती है कि मैं या आप किस तरह के शख्स हैं। There are physical factors that we inherit from our parents, from our ancestors. और सबसे पहले जो है वो जिस्मानी या वर्षे में जो कुछ हमें अपने अब्बा अजदाद से मिलता है। There are factors in the environment where we grow and learn language, learn how to live, the environment. और उसके बाद हम किस तरह के माशरे के अंदर, किस तरह की एनवायरनमेंट के अंदर जो हैं वो बढ़ते हैं। But the third factor is choices that you make as an individual. और उसके बाद जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए क्या फ़ैसले करते हैं, आप क्या चॉइसेस जो हैं वो आप बनाते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। We'll see how important that is here in chapter 7, but remember what we saw in chapter 6. और आप ये देखेंगे कि ये कितनी ज़रूरी हैं 7वें चैप्टर के अंदर, लेकिन ये हमने पहले 6ठे चैप्टर के अंदर देख लिया है। Right in the first part of chapter 6, Paul says, you have died to sin with Christ. और 6ठे चैप्टर के शुरू के अंदर जो पौलुस है वो ये बताता है कि तुम जो हो मसीह के अंदर जो हो मुए हो। So Jesus has already set you free. He's already liberated you from slavery to sin. और यीशु मसीह में जब हम मोड़ जाते हैं, जब हम मर जाते हैं, तो हम जो हैं उस गुलामी से आजाद हो जाते हैं जिसकी वजह सिर्फ मसीह का कफारा है। But in the last part of chapter 6, Paul turns this into the imperatives, the commands. लेकिन हमने ये देखा कि आखिरी जो 6ठे बाब का हिस्सा है उसने पौलुस ने जो है वो तमाम बातें जो है एक हुक्मिया जुमलों के सूरत में कही। I have to choose even daily to live by the truth of what Jesus has done. और हमें जो है एक बहुत इस सच्चाई के साथ रहना पड़ता है कि हमें अपनी चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, हमें अपने फैसले करने पड़ते हैं, और वो तमाम फैसले जो है हम इस बुनियाद के ऊपर करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी के लिए क्या किया। What Jesus has done does not change. यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया वो ला तब्दील है, But I change. लेकिन मुझे तब्दील होने की जरूरत है। So I need to choose over and over again to let Jesus' provision change my life, direct my life. और मुझे जो है इस चीज की जरूरत है कि यीशु जो है वो मेरी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर उसका अख्तियार हो, और वो मुझे मुकम्मल तौर पर जो है मैं उसके फैसले जो है अपनी जिंदगी के लिए करूं। That sounds fairly straightforward. He provided, now I choose. और अभी जो कुछ है हमें वही कुछ हमें लेने की जरूरत है, उसी को हमें चूज करने की जरूरत है जो हमें खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं। But in chapter 7, Paul is going to ask the question, why do I choose to do wrong? फिर उसके बाद पौलुस जो है ये सवाल उठाता है कि मुझे ये चूज करने की या ये फैसला करने की कैसे जरूरत पड़ती है कि मैं कुछ गलत करूं। He does not mean choosing wrong all the time, but choosing wrong sometimes. Why do I do it at all? और वो ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा जो है कोई गलत ही फैसला करे,
लेकिन वो ये कह रहा है कि कैसा ऐसा क्या होता है कि कई दफा जो है मैं गलत फैसला जो है वो कर देता हूँ. A way to summarize the problem, and we'll talk about this a lot today, is that a liberated will is not necessarily obedient. और ये एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है, लेकिन जो आजादी हमें मिली है इसका मतलब है कि हम खुदा के साथ जो है वफादार रहे. Jesus has liberated me. I am free from the control of sin, and yet I choose to sin. और यीशु मसीह जो है उन्होंने मुझे आजाद किया है और मुझे इसलिए आजाद किया है कि मैं आजाद रहूं और मैं दोबारा गुनाह के जुए में ना जुटूं. Why do I do that? Why do Christians still commit sins? और यीशु मसीह ने अगर मुझे आजाद कर दिया है तो पौलुस कहता है कि वो खुद या जो मसीह हैं वो गुनाह क्यों करते हैं. अगर मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे गुनाह से छुटकारा दे दिया तो फिर मैं दोबारा गुनाह क्यों करता हूँ. This is such an important problem that Paul devotes many verses to it, and he says the same thing many times. He repeats a lot. और ये एक बहुत जरूरी और काफी मुश्किल सवाल है और इसलिए पौलुस जो है इसको मुख्तलिफ मिसालों के जरिए और मुख्तलिफ सवालात के जरिए जो है वो बताने की कोशिश करता है. Here's another way to state the question, state the problem. और एक और जो तरीकाकार है जिसके जरिए कोई भी शख्स अपना मसला जो है वो बता सकता है. I don't know what the equivalent is in Urdu, but we have this expression in English, willpower, the power of the will to choose and to do what we choose to do. और जो वो ये है कि हमें जो आजाद मर्जी मिली हुई है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. And having willpower to do something, many people think that's what religion is all about, willpower. और काफी लोग जो है वो ये समझते हैं कि हमारी जो आजाद मर्जी है वही मजहब है. Willpower not to eat too much, willpower to stop smoking, willpower to not lose my temper. और हम उसको कहते हैं कि ये मेरी अपनी जो है वो विल पावर है जिसके वसीला से मैं जो है ज्यादा नहीं खाऊंगा. मैं अपनी विल पावर है जिसकी वजह से मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा. और इसी तरीके से जो है दूसरी बातें. Your willpower is important, but it's not going to be enough. आपकी जो विल पावर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेकिन वो काफी नहीं है. Now, Paul is going to give us the answer for this question. Where will we get that willpower? In chapter 8. और पौलुस जो है उसने हमें इसका जवाब देना है और वो जो जवाब है उसमें ये बताता है कि हम जो अपनी जो विल पावर है वो कहाँ से लेते हैं. But first he has to convince us that we really do have a problem. लेकिन पौलुस जो है हमें सबसे पहले ये बताना चाहता है कि हम दरअसल एक बड़े मसले में हैं. Have you ever done something that you immediately realized it was wrong? और क्या आपने कभी ऐसे कुछ किया है और फौरन आपको पता चल गया कि ये आपने गलत किया है? Did you find a way to excuse what you had just done? Oh, that was a mistake. I know better than that. I'll do better the next time. और कभी क्या आपने कभी देखा है कि आप फौरन कहते हैं कि ओ ये तो एक मिस्टेक थी लेकिन दोबारा जो है वो मैं ठीक करूंगा. And sometimes it is just a mistake, and sometimes we will do better next time. और काफी दफा ऐसा होता है कि वो मिस्टेक ही होती है जो हम अपनी कुव्वत इरादी से कुछ भी करते हैं तो वो एक मिस्टेक ही होती है और फिर जो है हम इसको जान लेते हैं और हम दोबारा उस मिस्टेक को या उस गलती को नहीं करते. But sometimes we find ourselves failing over and over and over again until we learn how to draw on the solution from chapter 8. और कई दफा है जो है हम बार बार जो है वो फेल होते हैं. All right, to begin chapter 7, Paul is going to give us an illustration.
अभी जो था हमने सारा एक खलासा देखा, अब हम 7वें चैप्टर को शुरू करते हैं और वो जो शुरू है, शुरू में एक मिसाल देता है. The illustration makes sense easily because he's trying to show us that death ends the jurisdiction of the law. और जो पौलुस जो है वो मिसाल इसलिए दे रहा है क्योंकि वो ये समझाना चाहता है कि जो मौत जब वाक़या होती है तो उसके वसीला से जो है जिस शख्स की भी मौत वाक़या होती है उसके बाद जो है उस शख्स से जो लोग मुंसलिक होते हैं वो उससे आज़ाद हो जाते हैं. और इसी तरीके से वो बताता है कि शरीयत जो है हम उससे किस तरीके से आज़ाद होते हैं. Now, Paul could have used any law to illustrate this, but he chooses the law that regards marriage. और पौलुस जो है वो काफी ज्यादा शरीयत के हिस्से शायद इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो उसने मिसाल दी वो शरीयत के अंदर जो शादी के बारे में है वो बताया. And he's going to make the argument that death ends the jurisdiction of the law over a married person when that person dies. और जो पौलुस जो है वो ये बताता है कि जब किसी औरत का जो शोहर है जब उसकी वफात हो जाती है तो वो उस शोहर की शरीयत से छूट जाती है. This is a good illustration because in the case of the law about marriage, the person who survives is also liberated from the law. और ये एक अच्छी मिसाल है वो इसलिए क्योंकि जो शख्स एक शादी के बंधन में है और जब वो उसका शोहर जो है या उसका जो या बीवी का मर्द या मर्द की बीवी की वफात हो जाती है तो वो उस शरीयत से आजाद हो जाता है. So Paul will take that illustration of someone who's married dying, and that death causes liberation from the law for two people. और पौलुस जो है वो यहाँ पर ये बताता है कि जब एक शख्स की वफात हो रही है तो दरअसल वो जो दूसरा शख्स है वो उसकी तमाम जो शरीयत है या जिम्मेदारी जो है उससे आजाद हो रहा है. And Paul is going to say that Christ's death on the cross ends the power of the law over us. और पौलुस जो है वो हमें इस मिसाल के अंदर ये समझा रहा है कि जब यीशु मसीह ने अपनी जान जो है सलीब पर दी तो उसकी जान देने के वसीला से हमारे ऊपर जो शरीयत है वो उसकी ताकत खत्म होती है. So let's look at what Paul says. और आए हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो इसको क्या इसमें बताना चाहता है. In the first verse of chapter 7, और 7वें बाब की पहली आयत के अंदर he says that the law, specifically this law, has authority over a man as long as he lives. और यहाँ पर जो है वो खास तौर पर ये बता रहा है कि ये जो शरीयत है इसकी किस तरीके से जो है वो अथॉरिटी है और वो ये बताता है कि ऐ भाइयों. So that's the general principle. We could be talking about any law. और ये एक जर्नल उसने बात की है सिर्फ शादी के हवाले से, लेकिन वो किसी और शरीयत के किसी और नुक्ते पर भी बात कर सकता है. Paul is thinking about the law of God, but he's going to use the specific law, the law about marriage. और वो ये भी कर सकता था कि खुदा की शरीयत, लेकिन वो एक शादी के हवाले से बात कर रहा है कि जो शादी की जो शरीयत है Now, उसके हवाले. his purpose here is not to give a complete teaching on the law about marriage. और यहाँ पर वो हमें जो शरीयत बताती है शादी के बारे में उसकी मुकम्मल जो है वो तालीम नहीं दे रहा. His purpose is to take that law, which is well known, and apply it to our situation regarding the law and Christ. और दरअसल उसका जो वजह है उसकी जो पर्पस है वो ये है कि वो हमें ये बताए कि किस तरीके से ये जो मिसल है हमारे ऊपर पूरी होती है. So in verse 2, he gives us the specific illustration.
और 2 जो आयत है वहां से वो इस मसल को जो है तफसीलन बताना शुरू करता है. So by law, a woman who's married is bound by the law to her husband. और एक जो औरत है जब शरीयत के मुताबिक जब उसकी किसी मर्द के साथ शादी होती है तो वो उसके बंध में बंध जाती है While he's alive. और सिर्फ तब तक जब तक वो जिंदा है. But if her husband dies, she's released from the law of marriage. लेकिन अगर उसके शोहर की वफात हो जाती है तो वो शोहर की शरीयत से छूट गई. Now, Paul could have said this the other way. The man is bound by the law to his wife, but if she dies, then he's freed from the law regarding his marriage to her. और ये उल्टे तरीके से भी हो सकता था और पौलुस ऐसे भी कह सकता था कि अगर कोई जो है वो बीवी की जिंदगी अगर कोई वो है किसी का कोई शोहर है और उसकी बीवी की जो है वो वफात हो जाती है तो वो शोहर जो है उसकी शादी की जो शरीयत से छूट जाता है. It suits his purpose a little better to say the man dies and the woman survives because the way he wants to apply this. और वो जानबूझकर जो है इसको शोहर के हवाले से जो है वो बता रहा है क्योंकि वो हमें इस मामले को समझाना चाहता है. When he applies this to us, he's going to say we are freed from the law about being married to the law so that we can now be married to Jesus. और पौलुस जो है वो दरअसल ये बताना चाह रहा है कि जब हम शरीयत का मतलब होता है लॉ का मतलब होता है कि जो कानून दिए गए हैं पुराने अहदनामे के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए तो वो ये क्या बता रहा है कि जब हम जो है मसीह में जब हम आजाद हो जाते हैं तो तब हमारी जो एक शादी है वो मसीह के साथ हो जाती है यानी कि हमारा जो ताल्लुक है वो खुदा के साथ मसीह के जरिए से बहाल हो जाता है. Verse 3 really makes the same point as verse 2. और जो तीसरी आयत है वो बिल्कुल दूसरी आयत से मिलती है. If the woman marries another man while her husband is still alive, she is committing adultery. और वो ये कह रहा है कि बस अगर शोहर के जीते जी जब दूसरे मर्द की हो जाती है तो जानिया कहलाती है. इसका मतलब है ये है कि अगर एक शोहर के जिंदा होते हुए वो औरत जो है किसी दूसरे मर्द के पास जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो जानिया है. But if her husband dies, she may marry another man and she is not committing adultery. लेकिन अगर वही जो बीवी है उसका शोहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आजाद है. जब ये लिखा हुआ है उस शरीयत से आजाद है तो जो वो कानून था जो शरीयत के अंदर शादी का जब उसका शोहर मर गया तो जाहिर है जिसके साथ वो अहद है वही मर गया तो फिर जाहिर है कि वो कानून भी लागू नहीं होता. So the point is that death caused the end of the power of the law in that specific situation. दरअसल पौलुस समझाना क्या कह रहा है पौलुस जो है वो ये समझाना चाह रहा है कि जो मौत है किसी भी चीज की वो उसको खत्म कर देती है. So here's how Paul applies this in terms of salvation and our relationship to God. और पौलुस यहाँ पर इसी बात को जो है अप्लाई कर रहा है लागू कर रहा है कि किस तरीके से हमें जो है मसीह के अंदर जो है निजात मिलती है. This verse 4, he says, you died to the law. और चौथी आयत जो है उसके अंदर जो है पौलुस क्या कह रहा है पौलुस ये कह रहा है कि तुम शरीयत के अंदर जो हो मर गए. And you died to the law through the body of Christ. When Jesus was crucified on the cross, you were dying to the law. और वो ये कह रहा है कि तुम शरीयत के अतबार से इसलिए मुर्दा बन गए. क्यों मुर्दा बन गए? क्योंकि जो मसीह है वो जो है सलीब पर मुआ. So the illustration is that
you have now experienced death to the law. You're no longer married to the law. और पौलुस जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि अब अगर जो है शरीयत की मौत वाक़या हो गई तो इसका मतलब है हमारा जो ताल्लुक है वो शरीयत के साथ खत्म हो गया. This means you are free to be married to the one who was raised from the dead, Jesus. और यही जो मौत है हमें किस चीज की आजादी देती है? वो हमें इस चीज की आजादी देती है कि हम अपना जो मिलाप है वो मसीह के साथ कर दें. And Paul says this will produce fruit to God, the difference in our lives. और पौलुस जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो है हमारी जिंदगी में जो है एक फल पैदा करेगा. So you can see how Paul is using the illustration of a woman whose husband dies can marry another man and have children by this second husband. और पौलुस जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि एक औरत जो है जब उसके शौहर जो है उसकी वफात हो जाती है तो वो उसकी शादी की जो शरीयत है या जो कानून है उससे वो आज़ाद हो जाती है और उसके बाद वो आज़ादी के साथ एक नया शौहर कर सकती है और उस नए शौहर से वो जो है अपनी औलाद भी पैदा कर सकती है. Death ended the previous marriage, the previous relationship, so now there can be a new relationship that bears fruit for God. और पौलुस यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पुराना जो ताल्लुक था उसके अंदर जो है किस चीज की वफात हो चुकी है. पुराने जो उसके अंदर शरीयत की जो है वो वफात हुई है. अब जो है हम नई जो ताल्लुक जो है जो मसीह के साथ है उस मसीह के ताल्लुक के जरिए से हम खुदा के अंदर जो है वो फल पैदा करें. Please understand that this is an illustration that Paul does not use all the time. और आप ये हमेशा याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल है, शादी की मिसाल. In the book of Galatians chapter 4, Paul says that we were under a schoolmaster, a teacher, and the teacher was the law. और जो गलीतियों जो है उसके 4 बाब के अंदर इसी बात को पौलुस जो है वो फर्क लिहाज से बता रहा है और वो ये बता रहा है कि जो शरीयत थी वो एक हमारे उस्ताद की मानित थी. But since God has done for us what Jesus did and what the Spirit brings to us, we are no longer under the teacher. We are now free to relate to God as our Father. और जो पौलुस है वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो कुछ भी हम वो पौलुस यहाँ पर ये बताना चाह रहा है क्योंकि हम अब जो है उस उस्ताद के जो है वो कानून में नहीं है. So that's a different kind of illustration. The schoolmaster, the teacher, and no longer you don't need that schoolmaster now. और ये एक फर्क तरह की मिसाल है जिसमें जो है वो शौहर की बजाय एक उस्ताद की बात की गई है. Here is the death of somebody who's married to something that causes that relationship to be released. और जो यहाँ पर इस मिसाल के अंदर कि जब एक शादी की बात हो रही है तो उसके अंदर हम ये बताते हैं कि जब वो शादी खत्म होती है एक वफात की वजह से तो जो दूसरा शख्स है वो आजाद है. The illustration is that we were in some sense married to the law. Now we have died to the law and yet we're still alive. So we get to marry Christ. और अब इस तमाम बात का जो है वो खुलासा ये है कि हम जैसे कि किसी तरीके से शरीयत के साथ हमारी शादी हुई थी. शादी का मतलब ये था कि हमारा उसके साथ राब्ता था. अब हम ये कहते हैं कि जब वो शरीयत मर गई तो हम आज़ाद हो गए और जब हम आज़ाद हो गए तो हमें ये मौका मिला कि हम दोबारा जो है उस आज़ादी को इस्तेमाल करें और हम जो है खुदा के साथ जो है राब्ता कर सकें मसीह के वसीला से ताकि हम उसके साथ
इस एक एक बंधन में रहें। Paul goes on to talk about the fruit or the results of our different kind of life now in the next verses. और अगली आयतों के अंदर जो है वो पौलुस हमें ये बताता है कि हम किस तरह की जो है हमारे जिस्म के अंदर से जो फल जो है वो नजर आते हैं। In verse 5, he says that when we were controlled by the sinful nature, that is the flesh, we were seeing fruit for death. और पौलुस जो है वो ये बता रहा है कि जब हम जिस्मानी थे तो हम जो भी गुनाह के वसीला से जो भी हम करते थे उसके वसीला से जो है हम मौत का फल पैदा करते थे। What he says here is rather interesting. He says the sinful passions or the flesh was aroused by the law of God. और आप ये देखें कि वो एक बड़ी मुख्तलिफ बात कर रहा है। वो बात क्या कर रहा है? कह रहा है कि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की जो रगबतें हैं वो शरीयत के बायस पैदा होती थी। और वो ये कह रहा है कि जो गुनाह जो है उसकी जो ख्वाहिशें हैं या उसकी तरफ जो जाना है वो शरीयत के बायस पैदा हो रहा था। Now, this is a statement that Paul needs to explain more. What is the relationship between God's law and this fruit for death? और ये जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पौलुस को जरूरत है कि इसको मजीद जो है वो बताए कि किस तरीके से जो गुनाह की जो रगबतें हैं वो मौत का फल पैदा कर रही हैं। Does God's law produce death? क्या खुदा ने जो शरीयत दी है वो मौत पैदा कर रहा है? The last part of this chapter, the most part of this chapter, is going to explore that question. और इस जो बाब का जो आखिरी हिस्सा है वो इस क्वेश्चन को मजीद जो है हमें बताएगा। For right now, notice what he says in verse 6. और अभी जो है हम देखते हैं कि 6ठी आयत के अंदर वो क्या कहता है। This is kind of the point of the illustration. और यहाँ पर जो है हम इसका खास जो है पॉइंट देखते हैं। By dying to the thing that once bound us, that's the law. और जब हम किसी एक चीज में मर जाते हैं, जब जिसकी बात हमने ऊपर की वो शरीयत की बात की। Or is it? Is the law that which once bound us? What law is he talking about here? और अगर वो किस दरअसल हमने ये देखना है कि वो किस शरीयत की बात कर रहा है। Well, he says we have been released. Death has occurred, so we've been released from the law. और पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि मौत वाक़या हुई है और उस मौत के वसीला से जो है शरीयत से हम ऐसे छूट गए हैं। So we don't have to serve now in the old way of the written code or the letter. और अब जो है हमें अपने आप को जो है एक जो रिटन कोड जो है, रिटन कोड का मतलब है कि जो पहले हमें एक शरीयत दी गई है हमें उसकी गुलामी में नहीं रहना। Instead, the new way is going to be the new way of the Spirit. और बल्कि वो ये कह रहा है कि हमें नए तरीके से रहना है और वो जो नया तरीका क्या है वो रूह के नए तौर पर। Now, कि हमें रूह के नए तौर पर जो है वो अब खिदमत करने की जरूरत है। Referring to the new way of the Spirit is actually a sort of preview of chapter 8. और जब वो यहाँ पर कह रहा है कि रूह के नए तौर पर तो इसका इशारा जो है वो जो है ज्यादा 8वें चैप्टर के अंदर जो जिस बात को एक्सप्लेन कर रहा है वो उसकी तरफ है। Nearly all the verses in the rest of chapter 7 are going to show us what is the problem with the old way of the written code. और जो बाकी की हम आयतें हैं उसमें हम ये देखते हैं कि क्या मसला था जब वो तमाम शरीयत लिखी गई तो उसके अंदर दरअसल क्या मसला था जिसकी वजह से जो हम ये कह रहे हैं कि जो पौलुस जो है वो ये कह रहा है
कि शरीयत के बहस जो था वो मौत का फल पैदा हो रहा। But Paul has said something here that maybe wouldn't bother you and me as much as it bothered Paul, who grew up Jewish and who was trained to be a rabbi. और आप ये देखें कि ये जो मसला पौलुस यहाँ पर डिस्कस कर रहा है, बात कर रहा है, वो शायद मुझे और मेरे और आपके लिए इतना ज्यादा ना हो, लेकिन एक यहूदी के लिए, और वो यहूदी जो कि एक यहूदी रबी था, उसके लिए, पौलुस के लिए ये एक मसला, काफी बड़ा मसला था कि, और जिसको वो समझ चुका था। Paul says we have been released from the law. That's an amazing thing for a Jewish person to say. और पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि हम जो है वो शरीयत से आजाद हो चुके हैं, और किसी यहूदी शख्स के लिए जिसने एक यहूदियत के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। Especially for someone like Saul of Tarsus, who had been trained by one of the most famous rabbis of his day. और खास तौर पर जो साउल तारिसी था, उसके लिए जो उस वक्त के एक बहुत मशहूर जो वो था रबी था, गमलियल, उससे ट्रेन हुआ था। For him, before he met Jesus, the Torah, the law, was at the center of his life. क्योंकि मसीह के मिलने से पहले तक जो तौरेत जो थी वो उसकी जिंदगी का एक मरकज थी। But now, of course, Jesus is at the center of his life. लेकिन अब जब उसने मसीह को रूबरू देखा, तो मसीह जो था वो उसकी जिंदगी का एक मरकज बन गए। Still, he needs to think through what is the status of the law. Is it totally bad? Is it evil? Should we get rid of it? और उसको वो ये अब बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या जो शरीयत है वो बहुत गलत है, जो गुनाह का फल पैदा कर रही है या मौत का फल पैदा कर रही है, क्या हमें इससे छुटकारा हासिल करने की जरूरत है? Here's what he says in verse 7. Is the law sin? लेकिन हम 7वीं आयत के अंदर जो है 7वें बाब की वो देखते हैं, कहता है कि बस हम क्या कहें। Why would he ask that question? वो क्वेश्चन ये करता है कि हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? उसने ये सवाल क्यों किया कि शरीयत गुनाह है? In chapter 6, Paul had already said, when we were identified with Christ, we died to sin. और हमें पता है कि 6ठे बाब में पौलुस ने पहले भी कह चुका है कि जब हमारी शनाख्त जो है वो यीशु मसीह की सलीब के साथ हो जाती है, तो हम जो हैं गुनाह में हमारी मौत हो जाती है। Now he's saying we have been released from the law. लेकिन अभी जो है वो हमें ये बता रहा है, और वो ये कह रहा है कि हमें जो है शरीयत से आजादी मिल गई है। So we've been released from sin, we've been released from the law. Is the law the same thing as sin? और जब वो ये कह रहा है कि जब हमें गुनाह से आजादी हो गई है, और अब ये कह रहा है कि हमें शरीयत से आजादी हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या गुनाह और शरीयत एक ही चीज है? Well, Paul says quickly, no, of course not. लेकिन देखिए, जैसे ही वो सवाल करता है, एकदम उसका जवाब देता है, कहता है कि बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? और उसके बाद एकदम जवाब देता है, कहता है हरगिज नहीं। In fact, he says the law is what shows me what sin is. और वो ये कहता है बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। And he gives an example to be very specific. और यहाँ कर एक वो खास मिसाल देता है। He takes the commandment, the 10th commandment in the 10 commandments, which says, you shall not covet. और वो एक जो है हुक्म देता है 10 हुक्मों में से, और वो हुक्म है कि तू लालच ना कर। Where did we learn that it's wrong to covet?
और हमें कैसे पता चला कि लालच करना बुरी बात है? Paul says it's the law of God that teaches us that coveting is wrong. और पौलुस जो है वो ये बताता है कि खुदा की जो शरीयत है वो हमें ये सबक देती है कि जो लालच करना है वो गुनाह है। Again, Paul could have used any commandment, another one of the 10 commandments or one of the commandments besides those. और पौलुस जो है वो कोई भी 10 हुक्मों में से और हुक्म भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ये वाला हुक्म ही क्यों इस्तेमाल किया कि तू लालच ना कर? I think there's a good reason why he chose this particular commandment to illustrate his point. मेरे ख्याल में इसकी एक खास मखसूस वजह है और उस वजह के बना पे उसने अपना जो पॉइंट है उसको बताया। Of all the things that are mentioned in the 10 commandments, I think coveting may be the thing that gets most at the heart. और अगर हम देखें तो जब हम इस गुनाह को देखते हैं, लालच के गुनाह को, तो उसके अंदर जो है हमें नजर आता है कि एक बहुत बड़ा जो अंसर है वो हमारी अंदर का नजर आता है कि हम अंदर से क्या है। I know, at least for me, is the thing that seems like the most natural thing to do, to see something and to covet it. और मेरे लिए शायद ये कि मैं जब किसी चीज को देखता हूँ और एकदम जो है वो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये मेरी हो, और मैं कहता हूँ कि मेरे ज़हन में एक लालच आती है उसके लिए। Perhaps sometimes I have seen someone having a nice automobile, and I think, oh, I wish I could have that automobile. और कई दफा डॉक्टर ऑट्री जो हैं वो देखते हैं रोज राइस कार और वो कहते हैं कि शायद ये मेरी हो। I give an example of rose rice, so if you want to cover it, get something good. Yeah, I think more often for me a problem has been I see someone else has been honored or recognized, and I think I should have been recognized. I should have been honored. और कई दफा ऐसा होता है कि जब किसी को जो है वो इज्जत मिल रही होती है कि उसने एक बड़ी अचीवमेंट की है, उसका कोई उसको इनाम मिल रहा होता है और लोग उसको ऑनर दे रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये तो इसको क्यों मिली, हम उसके अंदर से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि ये तो हमें मिलनी चाहिए थी। That seems very natural to me, but God's word tells me coveting is wrong. और ये मेरे एक अंदर है कि जब भी मैं जो है देखता हूँ कि किसी और को जो है वो इज्जत मिल रही है, तो मैं एकदम कहता हूँ कि ये मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन एकदम खुदा का कलाम जो है वो मुझे बताता है कि जो लालच करना है वो बुरी बात है। I know one of the first words that young children learn after they learn to say mother and father, mama, papa, however they say it, one of the things they learn to say is mine. और आपको शायद पता होगा कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप के लफ्ज के बाद जो सबसे पहले बात बोलते हैं या सीखते हैं वो ये है कि मेरी है। And I don't know about you, but I've seen children say something is mine and it really was not theirs. और काफी दफा आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि कोई चीज जो है वो मेरी है, लेकिन वो उसकी नहीं होती। Children just playing maybe outside in the dirt, and they're playing with sticks or playing with shovels or whatever they're using, and some child grabs it from another and says, "Mine." और कई दफा जो है आपने देखा होगा कि बच्चे किसी भी चीज से खेल रहे होते हैं और उनमें से कोई एक बच्चा जो होता है वो दूसरे से वो चीज छीन लेता है और वो कहता है कि ये मेरी है। I mean, if you allow me, I have a very interesting example of that. Okay. It is really interesting. When I was in Pakistan, I was like a little better financially, and I have a maid working for us at our home, and she lives and she has like a baby, I think 2.5 year or 3-year-old,
And one day he was saying, it's mine and it's mine, it's keep on crying. And my wife says, I mean, if she wants something, give it to her. She said, she is saying that particular bird is her and give me that bird. There was a bird sitting on a tree. So she was saying that bird is mine. So she said, how can I bring that bird for her? Okay, that's a good illustration. तो मैंने मिसाल के तौर पर नहीं, थोड़ा सा दिलचस्प है कि हमारे घर में थी एक बहन जो थी हमारे साथ हमारी मदद करती थी घर में, तो उसकी एक छोटी बच्ची थी, तो वो रो रही थी कि वो मैंने लेनी है, वो मेरी है, मेरी है। तो हमने, मेरी वाइफ ने कहा कि क्या ये मांग रही है, इसको दो, क्योंकि ये रोती जा रही है। कहती, उसकी जो माँ वो कहती कि वो जो चिड़िया बैठी हुई है ना, वो कह रही है कि दरख्त के ऊपर वो मेरी है, मुझे वो दो। All right. Okay. Yeah. This is one reason why little children need parents, maybe older brothers or sisters. Somebody needs to teach them, no, that belongs to that person, or that does not belong to you at all. It's the bird in the tree, it belongs to God. और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें माँ बाप की जरूरत होती है और बच्चों को माँ बाप की सुनने की जरूरत होती है कि जब वो बताते हैं उन्हें कि क्या चीज उनसे ताल्लुक रखती है, क्या उन्होंने करना है या क्या नहीं करना। और कई दफा जो है माँ बाप को भी जो है वो बड़े ध्यान से रहना पड़ता है कि वो बच्चों के साथ मिलकर कुछ इस तरह के गुनाह करते हैं जो बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को ये करता हुआ देखते हैं। Now, when that teaching comes to you, that is the law. Maybe you don't recognize it as God's law, but it's the law, the rules. और जब ये तालीम आपके पास आती है तो यही जो तालीम है वो शरीयत है, और शरीयत जो है वो कानून है कि किस तरीके से आपको जिंदगी बसर करना है। Here's what Paul says in verses 8 and 9. और ये हम देखते हैं कि 8वीं और 9वीं आयत के अंदर। And this verse 8 is really an important part of Paul's discussion. और ये जो है वो पौलुस की डिस्कशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। He says that the commandment, when the commandment, the rule came to me, it actually became an opportunity to produce even more coveting. और पौलुस जो है वो ये कहता है कि जब शरीयत जो है वो मेरे पास आई तो उस शरीयत ने क्या किया, उस शरीयत ने मेरे अंदर जो है वो एक ज्यादा बड़ा गुनाह जो है वो पैदा किया। What Paul is saying is that the commandment, do not covet, actually does not stop me from coveting. It increases my desire. और पौलुस जो है जब ये बात कहता है कि जब हमें दरअसल पता ही चल जाता है कि जो लालच क्या है, तो वो जो लालच है वो हमारे जानने के वसीला से कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे इसके मिसाल के तौर पर वो ये कहना चाह रहा है कि जब मुझे पता चल जाता है कि लालच जो है वो एक गलत बात है और लालच जो हमें बता रही है गलत बात है वो शरीयत है, तो जब मैं इस बात को जान लेता हूं तो मैं दरअसल और ज्यादा लालची हो जाता हूं, सिर्फ जानने के वसीला से नहीं बल्कि उसके जानने के बावजूद भी मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। Notice what Paul says causes this result. He says it's sin that does this. और वो यहाँ पर आप देखें कि पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि इसके वसीला से ऐसा होता है, और वो ये कहना चाह रहा है कि इसके यही एक वजह है जो गुनाह पैदा करती है। He's going to say this again. और यही बात को वो दोबारा कहेगा। But he makes this statement here that we need to look at. He says, apart from the law, if you don't have the law, sin is dead. और पौलुस जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि शरीयत के बगैर जो है वो गुनाह मुर्दा है। That does not mean you don't sin. It just means you don't know that it is sin.
इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह नहीं कर रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है कि ये गुनाह है। When I was a child and taking things away from my younger brother because I could, I was stronger, I didn't know that that was sin. और पौलुस जो है जब इस बात को कर रहा है तो वो ये कह, जैसे मैं जब छोटा था तो मैं अपने जो भाई थे उनसे चीजें छीन लेता था, तो चाहे मुझे पता नहीं था होता कि ये गुनाह है कि नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं कर रहा होता था वो तब भी गलत था। But I found out it was sin when my mother convicted me of my sin and taught me, no, that belongs to your brother. Let him have it. लेकिन मुझे तब इस बात का पता बिल्कुल सही तरीके से चल गया जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये तुम्हारे भाई की है और उसको दो। My point is, we didn't feel that way to start with. We had to be taught that by a parent or someone else who was teaching us. तो पौलुस जो है वो ये बता रहा है कि हम शायद इसको इस तरीके से पहले नहीं जानते, लेकिन जब हम जान जाते हैं तो तब जो है हम उसके ज्यादा असर को अपने अंदर देखते हैं। So in verse 9 he says, oh, without the law, sin was dead, but when the law came, the commandment came, sin sprang to life. और पौलुस जो है वो 9वीं आयत के अंदर ये कहता है कि एक जमाने में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था। इसका मतलब है, कहता है कि जब शरीयत नहीं थी तो मैं जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया। हुक्म का मतलब है कि जब शरीयत आई तो कहता है कि मुझे पता चल गया कि क्या गलत है क्या दुरुस्त है, तो उस सूरत में जो गुनाह जो है वो जिंदा हो गया, तो मुझे पता चल गया कि ये गलत है। Before I knew the commandment, I coveted because I wanted it for me, and I didn't know it was wrong. I felt okay about it. और उससे पहले ये था कि जब मैं इस बात को नहीं समझता था, कि जैसे एक मिसाल दी कि जब मैं बच्चा था तो मैं किसी चीज का लालच करता था और इस बात को मैं नहीं समझता था, तो शायद वो मेरे लिए गुनाह ना था। लेकिन एक वक्त आया कि जब मेरी माँ ने या मुझे ये शरीयत ने मुझे बताया कि ये जो लालच है ये गलत है, तो फिर जो है वो गुनाह जिंदा हो गया और मैं उस गुनाह के वसीला से मर गया। But now that I'm being taught that that is wrong, I now feel guilty because I'm feeling this, and my mother or my teacher is saying, no, 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 and I still want it. और अब देखें, अब क्या है, मुझे ये बता दिया गया है कि क्या गलत है, और जब मुझे ये बता दिया क्या है क्या गलत है और अब मैं दोबारा उसी को कर रहा हूँ, तो मैं जो हूँ उस गुनाह को अपने अंदर जो है वो जिंदा कर रहा हूँ। And perhaps I also now feel anger toward the person who's teaching me, and maybe resentment toward my brother who has this and I can't take it away from him. और अब कई दफा हम ये भी देखते हैं कि जो कोई भी हमें सिखा रहा होता है, जैसे पहले के जो केस है उसके अंदर जो बताया डॉक्टर ऑट्री ने अपना कि उनकी जो माँ थी, तो कई दफा हम अपने सिखाने वाले के खिलाफ भी जो है गुस्सा करते हैं कि ये हमें क्यों सिखा रहा है। I may even have the idea that when my mother, my teacher, is not looking, I will take it anyway and hide it so that no one knows. और मैं शायद ये भी फिर सोचना शुरू कर देता हूँ कि जो चीज जो है मैं चाहता हूँ, जैसे मैं अपने डॉक्टर ऑट्री अपने बचपन की बात करते हैं कि जब वो एक चीज जो थे अपने भाई की जो है उसको कहते थे कि मेरी है, लेकिन उसके बाद जब मेरी माँ ने बताया कि ये तुम्हारी नहीं है, तो फिर मैंने एक दूसरा गुनाह इसके साथ शामिल किया, और वो ये था कि एक मैंने लालच की और दूसरी मैंने चोरी की, मैंने वो चीज चुरा ली, उससे छुपा दी। So my coveting, which seems so natural, has been shown to be wrong, but wrong is just multiplying. और जो मेरी जो लालच है, देखिए उधर से और कितने गुनाह जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गए।
again, Paul is going to say these things over and over again so that we'll be sure to get the point. और पौलुस जो है इसी बात को बार बार दोहराएगा ताकि आप जो वो पॉइंट बता रहा है उसको जो है समझना आसान हो. So he says in verses 10 through 12, the very commandment that was supposed to bring me life actually brought death. और पौलुस जो है वो ये बता रहा है कि जो शरीयत जो है, जो हुक्म जो है, जो मेरे लिए जिसको जिंदगी लेके आना थी, वो दरअसल मेरे लिए मौत लेके आया. Now this would apply to all the commandments, but he's used the illustration of coveting. और शायद उसने बाकी हुक्मों की बजाय जो है वो लालच के हुक्म की मिसाल देकर इस बात को समझाना जो है वो मुनासिब समझा. Again, I think because coveting is the thing that seems most natural to us, much more natural than, say, killing someone. और ये इसी तरह है, ये जो लालच है, इसी तरीके का ये जो लालच का गुनाह है, इसी तरीके से है जैसे आप किसी को जो है वो मार रहे हैं. But again, notice the wording in verse 11. लेकिन अगर आप 11वीं आयत के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको देखें, what produces this result of death? और वो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो मौत है ये क्या पैदा कर रही है. It is sin. Sin is what kills me. और जो पौलुस जो है वो ये बता रहा है कि दरअसल जो गुनाह है वो मुझे मार रहा है. But sin has used the commandment to make me worse. और पौलुस ये बताता है कि जो गुनाह है वो मौका पाकर हुक्म के जरिए से जो है मुझे बहलाता है. बहलाने का मतलब है मुझे और ज्यादा जो है वो खराब करता है. So is the law sin? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो शरीयत जो है वो गुनाह है? No, the law is holy. पौलुस ऊपर ही कहता है कि क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं. The commandment is holy and righteous and good. It's good in every way. पौलुस जो है वो ये कहता है कि जो शरीयत है वो पाक है और शरीयत के जो हुक्म है वो सब पाक हैं. But sin has used this good thing to do very bad things. पौलुस जो है वो ये कह रहा है 11वीं आयत के अंदर ये समझा रहा है कि जो गुनाह है वो शरीयत जो एक पाक चीज है उसको इस्तेमाल करके हमें बहका रही है ताकि वो हमें बहका रही है ताकि वो हमें मार डाले. So it's like sin and the law, you know, are all tangled up in the human situation, and Paul is untangling them so that we can see that the law is not sin, but the sin is very sinful. It uses the good thing to kill us. और ये देखिए एक बहुत अजीब से गुलजन जो है वो उलझन है जिसको पौलुस सुलझाने की कोशिश कर रहा है. पौलुस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गुनाह जो है वो एक ऐसी चीज है जो मौत पैदा करता है और वो उस मौत को पैदा करने के लिए एक अच्छी और पाक चीज जो कि शरीयत है उसको लेता है, उसके हुक्मों को लेता है और उसके हुक्मों के वसीला से जो है वो हमें मार डालता है. Paul wants us to see the difference between the law and sin, so he continues to ask, did the good thing become death to me? और इसीलिए जो पौलुस जो है वो आगे बढ़कर फिर बताता है, कहता है कि बस जो चीज अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? The law is a good thing. Did the law become death to me? और जो लॉ है, जो शरीयत है, वो एक अच्छी चीज है, क्या वो मेरे लिए मौत बन गई? Again, he answers very quickly, no, not at all. और एकदम वो कहता है कि हरगिज नहीं. But all of this happens so that we can really see just how bad sin is. और ये सारा कुछ इसलिए हुआ ताकि हमें पता चल जाए कि गुनाह जो है वो कितनी बुरी चीज है. And it's sin which produces death,
even using the thing that's good to kill me. और जो सिन है, जो गुनाह है, वो अच्छी चीजों को इस्तेमाल करके मौत को पैदा कर रहा है. So this shows just how evil sin actually is. और वो दरअसल ये बता रहा है कि गुनाह हद से ज्यादा जो है वो मकरूह है, वो हद से ज्यादा बुरी चीज है. The next verse, I want to spend more time on this, verse 14. और जो अगली आयत जो है 14वीं आयत, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो गुजारूंगा. And Paul is doing something here to help us see the law, but also now he's going to show us what this reveals about us. और यहाँ पर जो है पौलुस जो है वो शरीयत की मिसाल देता है और ये बताता है कि वो हमारे लिए जो है किस तरीके से जाहिर होती है. The law, he's talking about the Torah, the law is spiritual. और वो ये कह रहा है कि जो शरीयत जो है जिसको हम तौरेत में देखते हैं, कहता है वो तो रूहानी है. Well, yes, it's spiritual. It has God as its source. God is the source of the law. It has a spiritual purpose. और क्योंकि शरीयत जो है वो खुदा की तरफ से है और वो पाक है और वो रूहानी है. The law is spiritual, but Paul says, I am not spiritual. लेकिन पौलुस कहता है कि मैं जो हूँ वो रूहानी नहीं. Now, this is the NIV, and it uses the word unspiritual. और ये जो है वो NIV है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना रूहानी, but we have like a physical. It says we are not spiritual, we are physical. Yeah, good. That's actually a more literal translation. That's actually a good translation. और हमारे पास जो है वो ये नहीं लिखा हुआ, लिखा ना जैसे कि शरीयत तो रूहानी है मगर हम ना रूहानी है, ये नहीं लिखा. उर्दू में लिखा है कि शरीयत तो रूहानी है मगर हम जिस्मानी. What the NIV is trying to do is make the contrast. The law is one quality. I am a different quality. I am not spiritual. And why am I not spiritual? Because I'm just a physical being. और जो यहाँ पर जो है वो पौलुस ये बता रहा है कि मैं जो रूहानी क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक जिस्मानी शख्स. I added this to the slide. The word spiritual here is the word pneumatikos. और जो spiritual जो है लफ्ज, उसका जो मतलब है नुमाटिकास है. जैसे नमूनिया नहीं हुआ था तो वही वाला लफ्ज है. What the NIV translates as unspiritual is more literally of the flesh. और जो NIV है वो इसको ट्रांसलेट कर रही है ना रूहानी, लेकिन ज्यादा जो इसका अच्छा जो मतलब है वो हमारी उर्दू की बाइबल में भी है, वो है जिस्मानी. So the Greek word here is sarkinos. और जो ग्रीक जो वर्ड है जिस्मानी के लिए वो है sarkinos. I meant to write that in English letters and I forgot to do it. Sarkinos means made out of sarks. और sarkinos का मतलब जो है कि जो कि सार्क से बना हो. And the sarks is just, our flesh, our humanity. और जो सार्क्स है इसका मतलब ये है कि हमारा जिस्म या हमारी इंसानियत. So when you're talking about the humanity, and in what sense you're talking, like physical or like the soul wise? I think the good thing about the NIV is that it shows a stark contrast between pneumatikos and what I am. The bad thing about it is it does not make clear what the thing is that is not pneumatikos. And the ESV, and it sounds like your Urdu translation, makes it more clear that what is not pneumatikos is this. I am not pneumatikos. Okay. तो डॉक्टर ऑट्री जो है वो ये बता रहे हैं कि जो NIV जो है इंग्लिश की बाइबल वो जब तर्जुमा कर रही है तो वो
कह रही है रूहानी या ना हो रूहानी, लेकिन हमारी जो बाइबल है वो कह रही है शरीयत तो रूहानी है मगर हम जिस्मानी हैं. To put it in simple language, Paul is saying, I am merely human. और अगर आप इसको बिल्कुल आसान जुबान में कहें तो पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ. Or we sometimes say in English, I'm just flesh and blood. और कई दफा हम ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ जो एक जिस्म और खून. So this brings me to a question that I want to place before us before we quit today. और ये जो है एक क्वेश्चन पैदा करती है, एक सवाल पैदा करती है, और वो हम देखते हैं और इसके बाद हम आज की क्लास खत्म करते हैं. Here is that same verse in the English Standard, which is a more literal translation. और यही जो वर्स है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर है, ESV के अंदर है, जो कि ज्यादा जो है असल तर्जुमे के साथ मिलती है. The law is spiritual, but I am of the flesh. I'm sold under sin. और जो ESV है वो ये कहती है कि जो शरीयत जो है वो तो जिस्मानी है मगर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कि जो 14 आयत वो कहती है कि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी. Here's the statement as I would maybe say it. The law is spiritual, but the law cannot make me spiritual. और इसको अगर आप आसान बात में समझना चाहे तो ये दरअसल ये कह रही है कि जो शरीयत जो है वो रूहानी है. क्यों? क्योंकि वो खुदा से आई है, लेकिन जो शरीयत जो है वो मुझे रूहानी नहीं बना सकती. The law has God as its source, but the law does not have the power to transform me to be spiritual. और जो शरीयत है उसका जो मरकज है वो कहाँ से आ रही है? वो खुदा से आ रही है, लेकिन वो हमें रूहानी नहीं बना सकती है, किसी को भी रूहानी नहीं बना सकती. Another way to say it is just to be told what's right and what's wrong does not make me righteous. और ये कि क्या गलत है या क्या गलत ठीक है सिर्फ किसी को ये बता दिया जाए तो उसके सिर्फ बता देने से वो रूहानी नहीं बन सकता या वो रास्तबाज नहीं बन सकता. Christians need to remember this as much as anyone. और मसीहियों को इस बात को जानना या समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. We teach our children, we teach new converts, we teach one another in the church, but teaching, as good as it is not enough. और ये हम देखते हैं कि हम हर वक्त जो है लोगों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को, कलीसिया को, मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन जो काफी मर्तबा सिर्फ सिखाना जो है वो काफी नहीं होता. If the law cannot make me spiritual, here's the question: what can make me spiritual? और अगर शरीयत जो है वो मुझे रूहानी नहीं बना सकती तो फिर मुझे क्या रूहानी बनाए? What's being discovered in this chapter is there's something in me that is not really able to agree with God's law. यहाँ पर जो है कोई एक बात है जो हमें ये सिखा रही है कि कोई ऐसी बात है जो शरीयत को पूरा करने से रोक रही है. As we'll see next time, Lord willing, we'll see what the answer is. It's not the law. The answer is the Holy Spirit. और हम इसका जो जवाब है अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे, और उसका जवाब आप सबको पता है कि वो रूल कुदस है, और इसको हम मजीद सीखेंगे. Okay, that's a good place to stop, brother, unless somebody has a question or unless you want to ask me something else. और आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप अभी पता पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज जो है अपनी वो टेस्ट के अंदर जाएंगे जब हम देखना. Anybody have any question? किसी के पास कोई सवाल है? चलें, I think nobody has any question. I do have one question. I'll call. Okay.